Hi friends, good evening and welcome to the fourth edition of Khel Kala with Voice of Sky. Today we will have Vishal Sharma with us, fantastic artist, radio jockey by profession, has love for singing and a new passion for like storytellers, and so it's a sequence of art that he loves, and very soon he is going to connect with us due to some personal reasons. We could not start the session at 7 p.m. scheduled, but बहुत ही जल्दी हम ये शुरू करेंगे. We have Vishal with us. I'm just trying to connect with him. Guys, in the meanwhile, how are you all doing? कैसे हो सब आप लोग? Because both of us have many common friends from the same city, Varanasi. So it would be great if you can share something, some memories with Vishal. Thanks, Mati bhai. We're just trying to rectify his network, and he is back with us. So I think this time, hopefully. So yeah, So that Fasil, seems perfect. I'm audible, bro? yeah, you're audible. Am I audible? Okay. Yeah, perfect. So friends, Okay. finally we have the guest for the day, my very dear friend, an artist, singer, song composer, storyteller, and the list goes on. So it's just in a brief that what he is doing with he has done over the years. And welcome, Vishal. Welcome Thank you to so this much. fourth session of Khel Kala with Vo- Voice of Sky. Voice of And Sky, yeah. thank you, bro. It's an humble attempt to connect with the artist and sports person Hmm. over this platform, and try to connect with them and create awareness amongst the budding artist and the sports person. Hmm. And thanks to prominent personalities like you who are taking time, even though it was a pretty challenging evening for you. Uh, Yeah, it was because very of tough that, evening. I was, hmm. yeah. Now, please Well, go ahead. thank you so much for this wonderful introduction, Akash. I am really pleased with this introduction. And yes, you are doing an absolutely amazing job because I've been following your Instagram and I've been seeing that you are interviewing so many people from different corners of the world. That is pretty good actually. And people like you inspire others because it was the time when everybody was stuck at home. We had nothing to do, but you finally had this thought of coming all together and bringing so many people, and sharing their experience, their journey, their struggle, their happiness. This Right. might have inspired so many people. You never know. Thank you so much. Like coming Yeah. from you means a lot because what I'm doing, I'm not a professional at it. I'm still learning. I'm at a very beginner stage, and it's generally what you do. So at कैसा लग रहा है, right? You're in the receiving end. तुम बहुत कुछ It करते is थे it is ऐसा कि जहाँ पे you are taking and hosting people, and now see you are as a guest and I'm hosting you. it is a very rare day for me, days like this are very rare for me. ऐसा बहुत बार होता है कि हमेशा मैं सबकी लेता हूँ, आज कोई मेरी ले रहा है इंटरव्यू मतलब उसमें उसमें That's ऐसा artist humor. That's artist या humor. हाँ नहीं नहीं मैंने पॉजिटिव सेंस में बोला है, ये समझने वाले के ऊपर है कि उसने कैसे समझा है. सो या बट Friends, जोक्स those who अपार्ट have जो joined हाँ. in, I just want to mention one thing that we are like school friends, and it's very हम्म. fortunate of me to know someone very personally who has motivated himself, and whatever he is today, he is a self-made person. And rather than it's me who's saying, I will allow Vishal to say and introduce himself to all our viewers. First of Vishal, all, all yours. I would like to tell that me and Akash, we were like competitors in school.
So we were competing with each other, in dancing. So he still, I mean, he still does a wonderful dance. He's a wonderful dancer. And मेरा ऐसा है कि मैं भी थोड़ा बहुत डांस कर लेता था. तो आकाश सेक्शन डी में था और मैं सी में था, if I'm not wrong. Right, हाँ, perfect. सो हमारा न्यू ईयर और क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता था स्कूल में. सो दैट इज द टाइम जब आकाश और मेरा क्लैश होता था. ऐसे करके, वेल, दैट इज रियली नॉस्टैल्जिया. द फीलिंग इज वेरी नॉस्टैल्जिक. एंड अपने बारे में ये बताऊं कि सी मेरा नाम विशाल है, जैसे कि आकाश ने आपको बताया, एंड आई एम फ्रॉम वाराणसी. एंड या आई हैव डन रेडियो फॉर 10 years. मैं 10 साल रेडियो कर चुका हूँ. इंडिया के लीडिंग कंपनीज में एज अ रेडियो जॉकी मैं काम कर चुका हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रेडियो जॉकी, आई हैव डन लॉट्स ऑफ फ्रीलांसिंग. एंड मैंने कुछ एनजीओ के साथ भी काम किया है. एंड अभी थोड़ा ट्रैवलिंग का मेरे को चस्का लग गया है. सो फ्रॉम लास्ट 1.5 year आई बीन ट्रैवलिंग अराउंड इंडिया ओनली. मुझे पहले अपना देश घूमना है. सो अभी थोड़ा ये मेरे लिए एक नया नया कह सकते हो कि आप शौक मैंने डेवलप किया है. सो दिस इज ऑल अबाउट मी. हेलो स्वाति, हाय I think, शुभेंदु. yeah, exactly. That's what I wanted to say. Like, few friends have joined in. Thank you हम्म. guys for joining in. Vishal, before going into the session, like into formal structure, the one thing जो हमारे बीच common एक और है, वो है हमारी city, that is Varanasi. Uh, वाराणसी, या would you राइट. like, yeah, would you like a bit throw a light थोड़ा सा, because I can expect a few friends from who are not from India. So अगर कुछ ओके. अपने city के बारे में आप बोलना चाहे. I think Varanasi is the only city in the world which is not treated as a city. It is treated as life. In Varanasi, True, everything sir. is celebrated. Everything is celebrated from being born to Right. dying. Everything is celebrated in this city. And the best part about this city is people are really helpful and really positive. And we have a specific word for them. It's called mast mola. वो जी. अल्हड़पन, they are very mast mola. So I think Varanasi is one city which helps you to develop from inside. If you really want to experience the groundness of something, if you really want to experience the groundness of life, please do visit Varanasi once in your lifetime, and definitely you will have an altogether different experience. So this Like it is is being what I said, can say like about. this Varanasi is considered as the city, holy city, or the city of Yeah. spirituality, Hmm. even the city of moksha as well, Hmm. and so the list goes on. It's just like In short, zindagi ji lo. in one line you can summarize it like Varanasi is older than history. I think Mark Mark Twain, Twain, Mark, yeah, yeah, exactly. yeah, yeah. He He mentioned it said somewhere, this. right? Yeah, 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 yeah. So that is a beautiful line. So इसके आगे कुछ कहना ही बेकार है. Indeed, indeed, indeed. Okay, Hmm. so Vishal, as you just said, it's like a city which is older than history in itself, and generally it is perceived as a city which has a lot of deep-rooted tradition, culture Hmm. in itself. So, coming from that such kind of background, how was the journey to start an unorthodox, sorry, unorthodox profession like RJ, being an radio jockey? So, what Hmm. is that initial phase of your journey, and how did you thought that this is something that I want to pursue? Yeah, actually, I was into music from my childhood, as you know that from my school days only. I was doing music, Mm-hmm. I was singing, and I was dancing. So that is what made me connected to music, and I always wanted to do something related to music. And being a radio Mm-hmm. jockey, that is also related to music in a different Mm-hmm. way. In a different way. Mm-hmm. So I have never thought about joining radio in my early life, in my early days. So joining radio was just an accident, I would say. It was just an accident where a friend of mine, she told me that interview is going on. Would you like to go there, and would you like to give the interview because your voice is really good and all that? So I was like, okay, let me give it a try. So I went there, and there were so many people. So a 17-year-old boy is going for an interview, and who knows nothing about radio? Who knows
nothing. So that really made me scared. But yes, I cleared first round, second round, third round, and then they had this voice test and all. So I cleared everything, and yes, in 2011 I joined radio, and from then there was no looking back, and the journey was really beautiful. But yes, radio is something which changed my life, which Mhm. changed my perception towards life, and which changed me as a person. And because when I was in radio, I got the chance to connect with so many people from different background, from Mhm. NGOs to administrative authority to corporate, big corporate biggies. And yeah, there were so many people like that. So in that case, a lot of experience which I have gained from radio now, Mhm. that really helped me to grow as a person. And as a person, it really helped me. And all I can say is radio was just a pure blessing for me. That's all. विशाल विशाल जैसे आपने बताया कि लाइक 17 साल की महज आपकी उम्र थी लाइक सो इट Hmm. वाज जस्ट अ 17-year boy who is just I think just passing out of school, I guess, not even into universities. Ha, ha. So Yes, actually. how it must have been difficult. It cannot be easy. So how Yeah. difficult it was, and what was the role of your family, and how much supportive they were, your friends, your family, your well-wishers. Take us through that journey as well, please. सो जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था 17 साल की उम्र में, तो ऑब्वियसली बहुत नया था रेडियो बनारस के लिए. इट वाज रियली न्यू, एंड माय पेरेंट्स हैड नो आइडिया दैट आई हैव जॉइंड रेडियो. आई हैड टू गो टू लखनऊ फॉर माय फाइनल इंटरव्यू. So Okay. I went there. I told my mother that I have to go to Lucknow for some reason and all. I gave them some different reason at that time. Mhm, And mhm. I gave the interview, and when I joined it, I informed my parents that I have been selected as a radio jockey in this leading radio station. And they were like, ये क्या होता है? What is this? उन्हें नहीं पता था कि ये रेडियो जॉकी क्या होता है. They Vishal, thought would कि you mind if you can mention this station's name if it goes well with you? हाँ हाँ, it's Radio Mirchi. It's Radio Mirchi. So you were with Radio Mirchi and then couple of more stations. हाँ, yeah, I was with Radio Mirchi. I was with Red FM, and yeah, I have worked for this startup company. It's a startup radio station. So there I have worked as a programming head also. So yeah, so that is where I've joined radio. Mm-hmm. And उसके बाद ऐसा था कि जब घर में बताया तो किसी को नहीं पता था कि रेडियो जॉकी होता क्या है. तो उसके जी. बाद फिर घर आया तो उन्हें समझाया कि ऐसा ऐसा होता है. दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, बिकॉज देयर इज अ मिसकंसेप्शन Mm-hmm. विद पीपल. दे ट्रीट रेडियो जॉकी एज अ पार्ट टाइम job and all that, but it's not a part-time job. It's not a part-time job. In metro cities, there are some radio station who hire part-timers, like for five Right. to 6 hours, but everything is just full-time, and you have to give 8 to 9 Mm-hmm. hour. So I think someone is saying hello. Hello to Rupa. I mean, yeah, some Vishal, mix. she is from Myanmar. So like Okay. she is one of my friend. So Okay. thank you Hello. for Hello. joining in. Yeah. And So, yes, Vishal. Hmm. सो उसके बाद ऐसा था कि जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत सारे चैलेंजेस भी थे उसके साथ, बिकॉज मैं बहुत यंग था. आई वाज रियली यंग, एंड Mm-hmm. एवरीबॉडी वाज सो सीनियर टू मी. एंड सबने मुझे सपोर्ट किया. देयर वर फ्यू पीपल हु वर लाइक रियली बॉसी, एंड दे हैव दिस फीलिंग ऑफ seniority and all that. So I kind of I was kind of scared also in that way, but as years passed, and उसके बाद से फिर चीजें बहुत अच्छी होती गई. फिर मैं So पहले स्टार्टिंग में Vishal, मैंने बहुत mhm. नहीं does it नहीं, has to you do continue. something with does it has to do something with the mindset of the society? Although I'm not saying that Varanasi is lacking behind in any of the progressive manner, Hmm. people are literally getting into the progressive mindset. Hmm. But Hmm. like the bossy thing you mentioned, it's like कि ये young लड़का आ गया है तो how can like इसको थोड़ा सा मतलब पकड़ के चलना है so that over the हाँ. years with maturity and Hmm. experience he comes Hmm. into the front line frame. Yeah. So ऐसा था कि मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ. यू माइट नो आवर म्यूजिक टीचर फ्रॉम स्कूल. आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम. Okay. You know him.
So I met him in 2012. I joined radio in 2011, and I met him after a couple of months, like after almost a year. So I met him, Mhm. and I just said namaste to him, and I greeted him, and he was really happy to see me. And then he asked me, so what are you doing and all that. So I told him that, sir, I have joined this radio, and I am working there as a radio jockey. You can listen my show. सो ही वाज लाइक, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छी नौकरी करना। Even though, वो like, मेरे लिए, coming from a teacher who himself teaches an art, या it's एन a bit आर्ट, so या shocking. इट वाज अ बिट शॉकिंग, बट मेरे लिए वो ज्यादा शॉकिंग नहीं था, बिकॉज आई नो कि वो, उन्हें शायद पता नहीं था कि रेडियो जॉकी क्या होता है, एंड ही वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। सो दैट इज व्हाई ही वाज कंसर्न्ड अबाउट माय फ्यूचर, कि कुछ ऐसा वैसा तो इसने नहीं कर लिया है। सो इस वजह से शायद उन्होंने कहा होगा। बट या, दैट वाज रियली फनी फॉर मी इट वाज रियली फनी कि लोगों And को even बताना। Vishal, I guess it was the first couple of years also for radio to come into Varanasi. उस वक्त शायद कुछ ही साल हुए थे। हाँ, 2-3 साल हुए थे उस वक्त, 2-3 साल हुए थे। So बिल्कुल I बिल्कुल। think Shashank is here. Hello, Shashank. Hi, thank Yeah. you so much for joining in. And So he has a message for yeah, you. I have been hearing Vishal for last 8 years and are connected since yeah, 11. Okay. and he has been one of my loyal listener. And yeah, he's a great artist. He also plays guitar and he sings also. So yeah. So moving on. So we So have moving one on. your loyal Huh, listener, and also yeah. one loyal friend of mine is Rupa, who is like mentioning that okay, you are an RJ. Wow. So yeah, he is an RJ, Yes, Rupa ji, and I'm a radio jockey. Yeah. उसके बाद ऐसा हुआ कि there were a couple of people who really tried to put me down. They hmm demotivated me in a way. hmm hmm So उनसे डील करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था. And you must be really shocked कि एक हमारे स्कूल का एक बहुत ही हमारा क्लोज दोस्त हुआ करता था, एंड मैं उसका नाम नहीं ले सकता, एंड ही टोल्ड definitely पीपल, आई मीन आवर म्यूचुअल्स, कि विशाल विशाल ने घूस दिया है, विशाल ने पैसे दिए रेडियो ज्वाइन करने के लिए एंड ऑल दैट। So a mutual friend of mine, when he told me about it, I was really shocked to know, because something coming from a friend who is a very old friend, instead of appreciating, he was like right. questioning about this thing. So but the only thing I said to my mutual friend is, like, okay, if I have given money and if I have joined radio, tell him also to give the money and just join the radio if he can. Vishal, what I believe, and I think you also believe, is at the end, it's just the work that shows off, nothing else. Exactly. So there are people in every city. I mean, it's not about being a two-tier city or a metro city, something like that. It's about the mentality. It's about, you are surrounded by so many people. Some are positive and some are negative. Some really want to see you growing, and some really just want to see you Right. sitting and just not utilizing your time. They are just happy seeing you in that way only. So it is very, very important for all of us to have this positive approach. The hmm circle which we have ना, the circle which we have, that should be really amazing. क्योंकि कहते हैं ना कि साधु संग संगति में साधु बने और दुर्जन संगति में दुर्जन बने। So जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है वो बहुत सही कहा है। Right. तो आसपास का माहौल एंड योर फ्रेंड्स, वो हमेशा आपको मोटिवेट करने वाले एंड आपको बैकअप करने वाले होने चाहिए कि नहीं नहीं यार, तू करेगा, इसमें अच्छा True. करेगा। Very true. या Very true. So Vishal, this brings me to two more interesting things that I'm very curious to know, because हम्म although we are like school time friends, but हमारे बीच में भी एक gap आ गया था when I was trying बहुत, to get into हाँ। my profession, and you were working hard to get into your profession. या Uh, दो चीज, पहला is like, although you came into the artistic field, but coming into the RJ is something, uh, when we talk about art, हम सोचते हैं कि लोग forefront में अपना front face and अपनी face value बनाना चाहते हैं, but RJ is a profession where your voice is your presence द and मेन your की, हाँ। हम्म and it's not your face. So how do या you deal राइट। with that thing? How did you deal with that? And second, एक हमारे इंडिया में स्पेशली सोच है कि आर्टिस्ट है तो जरूर कुछ इंसिडेंट्स रहे होंगे, या
कुछ दिल टूटा होगा या फिर something happened to that person that has brought that those sentiments has got better and that has even means pushed you to be what you are today as an artist. I think heartbreaks are very important to grow in life. So I also had a heartbreak, and बहुत छोटा था वो बचपन वाला, that बचपन वाला प्यार, that teenage love, that वो that feeling. So ऐसा था कि मैं शुरू से शुरू करता हूँ. So मैंने 12th का एग्जाम दिया था और मेरा कंपार्टमेंट आया था. I got compartment in accounts. So basically मेरा 12th क्लियर नहीं हुआ था. And I had I was dating actually this girl, from the same school. So उसके बाद she got selected in BHU science department and all. So she Yeah, joined college, and I was a 12th dropout in a way. So मैं वो स्ट्रगल कर रहा था कि मैं एटलीस्ट कैसे भी करके पहले अपना 12th क्लियर करूं, बिकॉज पढ़ाई नहीं होती थी. आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज, मेरे से नहीं होती थी पढ़ाई. सो कैसे कैसे करके मैंने किया, बट आवर रिलेशनशिप कंटिन्यूड. और उसके बाद फिर ये हुआ कि उसे हेजिटेशन होने लगी कि शी वाज काइंड ऑफ हेजिटेटिंग टू टेक मी एंड टू इंट्रोड्यूस मी टू हर फ्रेंड्स एंड ऑल. सो that was a bit shocking for me, and at that very moment I thought that I would do something great with my life. I would do something that will make her proud. वो that teenage वाली वो feeling होती है ना कि सब कर लेंगे, right. पूरी पूरी दुनिया हमारी है, सब कुछ कर लेंगे. So So you brought after all that your energies together and drove yeah, towards. yeah. So I still remember it was her first semester. उसका फर्स्ट सेमेस्टर था, एंड मैंने बिना बताए उसे मैं मुंबई चला गया. सो बिकॉज मेरे कॉन्टैक्ट थे, सो उनसे मैंने बात की थी कि आई वांट टू जॉइन अ जॉब, मैं जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ. सो ही वाज लाइक ओके प्लीज कम टू मुंबई, आई विल हेल्प यू आउट, एंड you can you'll get a job easily here. So मैं भी चला गया. So when I was in trains, वो एग्जाम देकर वापस आई थी, एंड उसके बाद जब मैंने उसे बताया ऐसे ऐसे, she was like really worried and all that. She started crying and all. फिर उसके बाद मैं मुंबई गया. I was there for a couple of months. मैंने MX के लिए काम किया था कुछ महीने के लिए. और उसके बाद ऐसा हुआ कि our relationship was not going great, and then फिर वो ब्रेकअप होने के कगार पे था. Then I came back to Varanasi to fix our things. एंड उसके Okay. बाद वो चीजें सही नहीं हुई, एंड इट गॉट वर्स्ट. एंड देन मैंने फिर मतलब ब्रेकअप हो गया हमारा. फिर बहुत डिप्रेशन में मैं चला गया. वो पहला प्यार वाला डिप्रेशन में चला गया. और उसके बाद ये हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी अनु ने मुझे बहुत हेल्प किया. उसने मेरे को बताया कि विशाल यहाँ ऑडिशन चल रहा है, जाके दे रहा हूँ. इसके पहले मैंने रेडियो में ऑडिशन दिया था, बट मैं रिजेक्ट हो Right. गया था. सो मैं रिजेक्ट हो गया था वहां से. तो वो एक नेगेटिव वो था मेरे मन में कि अगेन आई गेट रिजेक्टेड एंड ऑल. एक्सक्यूज मी आकाश, थोड़ी देर बाद So खोलते हैं ना. सो so या yeah. सो उसके बाद फिर हाँ मैंने फिर गया, इंटरव्यू दिया. उसके बाद आई टोल्ड यू कि मैंने फिर ज्वाइन किया रेडियो एंड ऑल दैट. सो दैट इज हाउ that got me into radio. It was a very So as one of our friends has हाँ. mentioned clearly, like a broken heart brings in the real music. So Yeah. pretty much the case. I think I I think think emotions matters. शशांक ने कुछ लिखा है. That शशांक is ने what कुछ I just लिखा है. summarized in short. अच्छा. Okay. Yeah. I just Yeah. summarized it that a broken heart brings in the real music. So in a way, emotion matters for an artist because Yeah, if you don't for have everyone. emotions, yeah, matlab it's mostly into the artist arena if I talk about because that's what makes you expressive. So what Yeah. about the second aspect means where your voice become your face and you in a way lose your face value as compared to your voice. So how did you cope up with that? So the best part was when I joined radio in 2011. The biggest boom and the biggest what would you say, the biggest एक जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो वरदान था, बून था, जी. वो था सोशल मीडिया. So Facebook was at its peak in 2011. People were Exactly. getting into
Facebook, and they were really liking this social media. So in 2 3 years, like in 2013-14, social media became really popular. So we had this audible platform as a radio, Mm-hmm. and we have this Mm-hmm. visual platform on social media. So Right. we used to pre-sell our social media accounts on radio, that if you want to join me, please do search my profile by this name. And there were people who literally used to search us, and who used to text us that we listen to your show and we really love your voice and all that. There are people who have shared some really big problems of their life, and they wanted us to, I mean, for every radio Vishal, jockey. Vishal, And I'm cutting you in between. Sorry, means it's like, please do it once for my channel, na. Like if you want to be like following this Khel Kala with Voice of Sky, stay tuned to my profile. ऐसा कुछ बोल के दिखाना यार. अच्छा, ऐसा कुछ बोल के, लाइक फॉर इंस्टेंस, खेल Yeah, कला ना. means Yeah. yeah, it's Khel Kala with Voice of Sky. ओके. ओके. सो अगर आपकी भी लाइफ में बहुत सारा टेंशन है, और टेंशन को कम करने के लिए आपको चाहिए कुछ ऐसा जो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाए जहां पे सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की दुकान खुली हो, और वहां से आप थैला भर भर के मोटिवेशन ले, तो आप एक काम करो ना, फटाफट खेल कला ज्वाइन करो. वॉइस ऑफ स्काई में आकाश आता है और ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के लाता है जिनसे भर भर के आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, जिससे आपकी भी जो उड़ान है लाइफ में वो बिल्कुल इंस्पिरेशनल हो जाएगी. एंड यू नेवर नो कि नेक्स्ट सीजन में आप आकाश के साथ हो, एंड यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट गेस्ट, या ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट. Oh, thank you. Guys, हाँ, दुर्गेश. मैंने कोई सॉरी, पेचेक नहीं दिया दुर्गेश. अपने दोस्त को. दुर्गेश ने लिखा है, विशाल सर सनबीम वरुणा यूरो में. हाँ भाई, मुझे बिल्कुल याद है सनबीम वरुणा, एंड मैं आया हूँ काफी बार सनबीम वरुणा में. Vishal, I don't know. I think I know. Means you are occupied today, थोड़ा सा, and it's pretty much hectic for you. The evening has been. हाँ. एक और request, because it's like अभी जब तुम मूड में आए हो, तो if possible तुम्हारे गाने का passion भी, if we can have like a glimpse of your singing talent as well, means it would be like real nice for all the viewers. अच्छा, जरूर. मैं सो ये थोड़ा फिक्स था, आकाश ने मुझे पहले ही बोल दिया था, भाई आई वांट योर गिटार. सो या, आई हैव माय गिटार विद मी. आवाज आ रही है? Perfect. शायद कभी न कह सका मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम. शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम. शायद जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं. न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं. न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं. बस. Amazing one, brother. It's after Thank you so so much. long like we are sitting like this, and I'm just listening to your voice. वो पुराने दिन याद आ गए, like जब हमारे annual days होते थे, and हाँ then यार. and you used to rehearse, and कभी कभी by mistake, by default, group singing में मैं भी पीछे खड़ा हो जाता था, and then we used to do this prayer chantings and all, thanks to the same music Yeah. teacher. या एंड यार, वो आई थिंक लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था. दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ. उस वक्त कोई टेंशन नहीं था. एक मैंने कोट पढ़ा था सोशल मीडिया पे कि उस वक्त ऐसा था कि उस वक्त पैसे नहीं थे पर वक्त बहुत ज्यादा था. आज पैसे हैं बट वक्त बिल्कुल भी नहीं है. यू नो, दैट इज हाउ इट Real इज. sense. Clap. Wow. Thank you. Thank you Vishal, so much another everyone. thing, Yeah. it's like this is for our viewers.
जैसे विशाल ने मेंशन किया दैट ही वेंट टू मुंबई, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा लाइक इंडिया वी हैव मुंबई एंड दिल्ली एज द हब स्पॉट फॉर the Yeah. practice of in the art field, but I Hmm. guess slowly we are getting this thing in the tier 2 cities as well. It's not that much limited as आपके टाइम में जैसे था 10 साल पहले कि Hmm. दिल्ली या Hmm. मुंबई ही आना होगा. So Vishal, Hmm. taking this as a platform, uh, what message would you like to give to all the budding artists हमारे बनारस के वाराणसी के हो गए या all nearby the small cities or Hmm. towns and where the resources are not much, but Hmm. अगर passion हो, self Hmm. dedication हो, so you can do this. So what the message that you would like to give to them? So, first of all, the first part which everyone should focus on, that is identify your talent, know your talent. Okay. सबसे पहले तो आप अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई, विशाल सर प्लीज फॉलो बैक. ओके, आई विल डेफिनेटली फॉलो यू बैक. सो सबसे पहले तो अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करो, डू आइडेंटिफाई कि आप किस चीज में सबसे बेस्ट हो, अगर आप सिंगिंग में सबसे बेस्ट हो तो जरूरी नहीं है कि प्लेबैक सिंगिंग ही करना है आपको. Right. पहले ऐसा होता था कि कि अब गाते हैं तो बॉलीवुड में ही गाना है. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अभी ऐसा है कि आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन सकते हो. आप Mm-hmm. अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो Right. और आप म्यूजिक सिखा सकते हो. यू कैन मेक इन, अगर आप फाइनेंशियली उस, क्योंकि हॉबी और फाइनेंशियली सपोर्टेड होना दो अलग चीज होती है. तो अगर आप अपने Mm-hmm. हॉबी को उसमें टर्न कर लो कि हम अपने हॉबी से ही पैसे कमाएंगे, अपने हॉबी को ही करियर बनाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करो एंड मेक श्योर कि आप फीडबैक लेते रहो लोगों से. ठीक है, अगर आप गा रहे Mm-hmm. हो तो आप कोशिश करना कि आप फीडबैक लेना, और जो आप, एंड ट्रस्ट मी, जो आपको क्रिटिसाइज करेगा ना, दे आर योर रियल फ्रेंड्स. अगर कोई आपको कह रहा है नहीं यार तो उतना अच्छा नहीं गाता है, हो सकता है आप उतना अच्छा Mm-hmm. नहीं गाते हो. उस चीज को, Exactly. क्योंकि Mm-hmm. आपने भी देखा होगा कि इंडियन आइडल हो गया, सारेगामापा हो गया, उसमें बहुत फनी फनी लोग आते हैं जो ऑडिशन देते हैं, एंड अल्टीमेटली उनका मजाक बनता है. तो चैनल को इससे सिर्फ और सिर्फ फायदा है. उन्हें ऐसा लगता है कि चैनल ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया. मैं ये प्रोसेस बताता हूँ पूरा. जब आप इंडियन आइडल या सारेगामा को ऑडिशन देने जाओगे, सो वहां पे 3-4 राउंड पहले ही होते हैं. ठीक है, Right. जो मेन स्टार जजेस होते हैं उनके पहले ही 3-4 राउंड होते हैं. इन उसमें से ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर आप बहुत एक्सट्रीमली नहीं गाते हो, या फिर आप बहुत हटके नहीं हो. मतलब जैसे कोई अगर Right. बहुत वियर्ड वियर्ड सा गा रहा है तो वो उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको ले जाते हैं, बिकॉज दैट इज फॉर देयर टीआरपी. सो Right. Right. इस चीज के लिए पहले आइडेंटिफाई करो अपना टैलेंट कि ये मेरा टैलेंट है. अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, उस टैलेंट को फिर आप कैसे ले जाओ. अगला जो प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, अगला प्लेटफॉर्म है, अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिल पा रहा है प्लेटफॉर्म, अगर आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिल पा रही जहाँ पे आप सिखा सको या जहाँ से आप उससे पैसे कमा सको, तो सोशल मीडिया को एक वो ले लो साइड में. ठीक है, प्लस आप एक Mm-hmm. जॉब करते रहो, एक रेगुलर जॉब अपनी लाइफ में करते रहो, जिससे अगर आप पैसे भी कमा रहे हो और उसके बाद आपका जो पैशन है वो भी आप कर रहे हो. इससे दो चीजें होंगी. एक तो आप फाइनेंशियली मतलब स्टैंड रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं Mm-hmm. होगी, क्योंकि अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो और खुद से आपकी सेविंग नहीं है, कुछ नहीं, और आप सिर्फ सपनों के लिए ही अपने करते जा रहे हो, बट योर पॉकेट इज एम्प्टी, सो वो शायद पूरे नहीं हो पाएंगे. हो सकता है आप जो 8 घंटे सोते हो आपको 5 घंटे सोने पड़े, 5 घंटे आप सो, बाकी 3 घंटे आप एक्स्ट्रा जो बचे हैं आपके, वो आप अपने उसके प्रैक्टिस में दो या फिर उस चीज को ग्रो करने में लो. सो ये एक ऐसा प्रोसेस है ना कि हर इंसान का अलग ओपिनियन होगा. सो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि जो लोग भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल दूंगा. Mm-hmm. कैरी मिनाटी. ठीक है, कैरी मिनाटी, that that guy is 21-22 years old. He's very young. उसने he's also a 12th dropout, for those who don't know. Right. कैरी मिनाटी भी 12th ड्रॉप है. एंड उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो रोस्टिंग बहुत अच्छा करता है, एंड उसने वो लोगों का, जैसे कपिल शर्मा, व्हाट कपिल शर्मा डज इज आल्सो रोस्टिंग. कपिल शर्मा की In a way, 80% जो yeah. कॉमेडी Right. होती है, Mm-hmm. हाँ, कपिल शर्मा की जो 80% कॉमेडी होती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रोस्टिंग. बट उसका जो रोस्टिंग है आप पूरे परिवार के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हो.
एंजॉय कर, एग्जैक्टली, हाँ। बट कैरी मिनाटी की जब कोई वीडियो आती है, सो यू लुक आउट फॉर योर हेडफोन की मेरा ईयरफोन कहाँ है, सुनना है हमें। सो कैरी मिनाटी का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि उसने उस चीज को, अगर आपने देखा होगा, जो एआईबी ने रोस्ट किया था, उसमें रघु राम ने जो एक लाइन बोली थी कि उसने एक गाली दी थी, अब्यूज किया था, एंड उसने बोला था आई जस्ट गेव यू 50 मोर व्यूज। वो बहुत सही लाइन थी, क्योंकि अब ऐसी ऑडियंस डेवलप हो गई है ना कि हम शायद हैप्पी न्यू ईयर जैसी मूवी को 200 करोड़ कमवा देंगे, 200 करोड़ कमवा देंगे, लेकिन हम तुम्बाड़ जैसी मूवी को देखने नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो ऑडियंस का टेस्ट समझना बहुत जरूरी है, टू, अगर आप एक आर्टिस्ट हो और आर्ट से अपना करियर बनाना चाहते हो, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप समझो उस चीज को कि आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जो लिसनर्स हैं, उनको क्या चाहिए। आपको पहले ये फिल्टर करना होगा कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा, या मैं जो गाने गाऊंगा, या मैं जो गाने लिखूंगा, या मैं जो पोयम बनाऊंगा, वो 15 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों के लिए ही होंगे, स्ट्रिक्टली। दैट इज कॉल्ड टीजी इन आवर टर्म, हमारे रेडियो की टर्म में दैट इज कॉल्ड टीजी। टीजी मीन्स टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप भी कहते हैं, टारगेट ऑडियंस भी कहते हैं, दोनों कहते हैं उसको। सो अगर आप अपना टीजी समझ गए, उसके बाद आप शुरू करो यार, शुरू करो एंड गिव अप मत करो। आप पहले वीडियोस बनाओगे, या जो भी आपका आर्ट है, उसको शायद व्यूज ना मिले, उसको शायद वो ना मिले, कुछ अप्रिसिएशन ना मिले, बट मेक श्योर कि आप कंटिन्यूटी में रहो, क्योंकि आप फिर खुद ही देखोगे कि अगर आपने 20 वीडियो बनाई, तो आप पहले वीडियो को और 20 वाले वीडियो को आप कंपेयर करोगे, आप खुद जज करोगे कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, कितना ज्यादा इम्प्रूव किया है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। राइट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कॉपी मत करना किसी को। नेवर एवर कॉपी एनीवन, ठीक है। इफ आई सिंग, आई लव सोनू निगम, आई रियली एडमायर हिम, बट द इंडस्ट्री एंड इंडिया डजंट नीड एनी सेकंड सोनू निगम। It already has one Sonu Nigam, and he is enough, and he is the best. So I think this better is one होगा, of the हाँ। moment of this session, Rishal. Like, हम्म, sorry, I'm just again cutting you in between. Like, friends, ये बहुत जरूरी है to create your, means having an role model is real good, but to create your own identity is also is I think the most important part. yeah, मतलब एक जनरल टेंडेंसी होती है कि लाइक मुझे तेंदुलकर बनना है, मुझे सोनू निगम बनना है, बट हम्म, हैविंग सेड दैट आप खुद को मत खो देना, यू हैव टू yeah, right, एक्सप्लोर योरसेल्फ। हम्म। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना यार, कि आजकल मैं देखता हूँ कि लोग सीखना नहीं चाहते हैं, पीपल दे डोंट वांट टू लर्न। द ऐसा फॉर्मल हो ट्रेनिंग गया कि पार्ट। हाँ, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते। अगर किसी ने, कोई राइटिंग करता है, कोई स्टोरी लिखता है, अगर फॉर एग्जांपल, तो हम्म। उसने एक दो देखा स्टोरी, उसके बाद अपना लिखा, एंड तीन चार स्टोरी लिखने के बाद वो खुद को गुलजार समझने लगते हैं, खुद को गुलजार प्रसून जोशी समझने लगते हैं। तो भाई ये मत करना कभी भी, नेवर एवर डू दैट। हमेशा जस्ट हैव दिस जेस्ट रियली गोइंग इनसाइड यू कि आपको सीखना है, ऑलवेज बी अ लर्नर। आई मीन लता मंगेशकर जैसी जो सिंगर है, वो आज भी ये कहती है कि आई एम स्टिल लर्निंग। सो हमारी क्या औकात है, हु आर वी आर नथिंग, ट्रस्ट मी। जैसे मैं अभी एक एग्जैक्टली। एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने इस क्वारंटीन में, जब मेरे पास मेरा कीबोर्ड था, लाइक माय सिंथेसाइजर, मैंने 3 साल पहले उसको लिया था, 3 साल पहले उसको लिया था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं नहीं सीख पाया। सच, मेरी लापरवाही से मैं नहीं सीख पाया। राइट। मैं शायद और चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि मेरा कभी वो पैशन ही वहां नहीं था टाइम कि नहीं दे नहीं नहीं। पाए। हाँ, मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। मैंने खरीद के रख लिया, मैं गया, मैंने पैसे पे किए, और वो 2-3 दिन था कि मैं सीखूंगा सीखूंगा, उसके बाद बंद करके रख दिया। 3 साल बाद मैंने इस लॉकडाउन में अपना कीबोर्ड निकाला, एंड ट्रस्ट मी, जितना मुझे, जो भी मैं सीख सकता था, जैसे भी जो जो तरीके से सीख सकता था, ऑनलाइन क्लासेस हो गए, यूट्यूब वीडियोस हो गए, ये सब कुछ हो गया, थ्योरीज हो गए, लेसन्स हो गए, उन सब को मैंने इतना स्टडी किया, इतना स्टडी किया, एंड अभी 40-45 दिन में मैं ठीक ठाक बजा ले रहा हूँ। आई मीन थोड़ा बहुत कर ले रहा हूँ। या सो इट इज, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी कुछ भी सीख राइट। सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट में ये कहूंगा, जो भी लोग हैं उनको, कि यार प्लीज अपने अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव रखना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखोगे, तो डेफिनेटली
आप बहुत अच्छा करोगे। एंड रिमेम्बर, हर कोई आपका दोस्त नहीं होता है, नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड, ठीक है। बहुत आपके जो रियल फ्रेंड्स है ना, वो दो तीन ही होते हैं या एक दो ही होते हैं। सो सबके साथ रहो, Agreed. सबके साथ मिलो, बात करो, ये करो, बट यू नो कोशिश करो कि अपना फोकस जो है ना, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम विथ गोइंग आउट एंड 6 6 घंटे घूम रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो वाला। सो आई थिंक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत It's टाइम like वेस्ट better किया। than अगर pursue your own passion. एग्जैक्टली, एंड आई रिग्रेट कि मैंने बहुत ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट किया जिनसे अब शायद मेरी बात भी नहीं होती है, जिनसे मेरा कोई कनेक्शन भी नहीं है। उनके साथ मैं बहुत घूमा, दिन रात मस्ती की, बहुत मतलब बहुत मस्ती की। अब मुझे रिग्रेट होता है कि काश मैंने वो टाइम सीखने में अगर इन्वेस्ट किया होता। सो आज आज शायद मेरे स्किल्स वो अलग लेवल पे होते। विशाल, आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स लाइक पूछा था कि क्या आपके रेडियो स्टेशन इंडिया से बाहर भी स्टेशन को अपना शो दिखाते हैं? आई गेस अभी नहीं है, बट अभी नहीं है। दैट इज समथिंग जो आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में कंसिडर कर सकते हो। हाँ, इफ अभी एनी वे अभी इफ आई एनी वे यू कैन टेक इट अक्रॉस बॉर्डर एज वेल। हाँ, सो आई एंड एम नॉट गोइंग टू सेकंड, डिस्क्लोज इट, बट आई एम वर्किंग ऑन हाँ, समथिंग जो बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगा लोगों से। इट इट विल प्रोबब्ली गोना टेक सम मंथ्स, बट या कुछ महीने में। आई थिंक किसी का एक सवाल है कि होपफुली। व्हाट अबाउट दोज हुज फैमिली इज टॉक्सिक। फैमिली इज टॉक्सिक। बिफोर कमिंग टू दिस वन, एक और चीज हम्म। है, दैट वुड बी लाइक ऑन अ पॉजिटिव नोट दैट you are a real motivational person and she is feeling motivated because of you, so that's for you, Vishal. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स कम्प्लीटली माई ऑनर। एंड देखो, टॉक्सिक फैमिली का मैं यही कहूंगा कि आपको आपके पेरेंट्स हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत रिजिड हो कुछ चीजों को लेकर, आपको शायद उनको ट्रस्ट नहीं हो आपके सपने पे। ठीक है, उनके सामने मत बताओ कि आपका सपना क्या है, कैसा है, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक बार आपने सक्सेस थोड़ा बहुत भी पा लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग में कहा था कि मेरी फैमिली भी बिल्कुल अगेंस्ट थी इस चीज के लिए। मेरे जब मैंने गिटार सीखना खुद से शुरू किया था इन 2006-7 में मैंने सीखना शुरू 7 किया था। अराउंड मुझे भी वही एग्जैक्टली। हाँ। सो उस टाइम ऐसा हुआ था कि माय फादर वाज रियली अगेंस्ट इट। ही वाज लाइक कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें गिटार सीखना है, पढ़ाई लिखाई तुम्हें नहीं करनी है। बहुत डांट पड़ी थी, मैं ऑलमोस्ट मेरा गिटार टूटने वाला था। बट फिर धीरे 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 मैंने सीखा। एंड द फन पार्ट इज कि मुझे जो रेडियो पर इंट्रोडक्शन मिला था, जो मेरा नाम रेडियो पर सबसे पहली बार गया था, वो था गिटार वाला विशाल। तो मुझे पूरा वाओ, शहर जो है ना, मुझे पूरा शहर वो गिटार वाला विशाल के नाम से जानता था कि अरे आप गिटार गिटार वाले वाला विशाल हो। विशाल, you have guitar with you. You mentioned about positivity, you mentioned about दोस्त friends, so इसी हम्म। बात पे एक पॉजिटिव फ्रेंडशिप कुछ गाना एक हो जाए प्लीज। अच्छा। व्हाट अबाउट दैट यारो दोस्ती वन? अच्छा। अच्छा, ओके, लेट मी ट्राई। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। तो इतने इतने ही सुना दूं। एक हाँ, अपना सो खुद सॉरी, फेवरेट मैंने यार। मैंने उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। जी सो बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनको बस ये कहना चाहूंगा कि देखो, आपकी फैमिली अगर टॉक्सिक है, आपकी फैमिली अगर सपोर्टिव नहीं है, सो आपको पहले उनको प्रूव करना होगा, ठीक है। कैसे भी करके वो आपको डील करना है कि आप कैसे उनको प्रूव करना चाहते हो कि आप जो कर रहे हो वो वर्दी है, एंड राइट। एक बार अगर आपने उनको प्रूव कर दिया ना, एंड ट्रस्ट मी, वो आपको नहीं रोकेंगे, वो बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो बस मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ। So this is not for only that friend that we have asked. Anyone, अगर आपको लगता है कि it's your family, friend, society that is stopping you, it's not the case, friends. आपको खुद को motivate करना होगा, खुद को prove करना होगा that whatever you are trying to achieve is actually something जो आप achieve कर सकते हो and it has a good prospect. So हम्म। you have to be honest in your efforts
and then everyone will support you for sure. भाई मैं यहाँ पे एक लाइन कहना चाहता हूँ कि जब जैसे भी जो भी बहुत लोग होते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो यू नो तो आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें जवाब दो या उनको बोलो या उनसे आप आर्ग्यू करो या ये करो। कभी मत करना ये, कभी मत करना ये। एंड आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो वो अचीव करने के बाद आप अपने रास्ते पे रहना, क्योंकि आप अपनी लाइफ के हीरो हो। और हीरो वाला ही काम करना, विलन वाला काम मत करना, क्योंकि जो हीरो होता है ना वो कभी Thank you. नहीं करते हैं। सो बस यही कहूंगा। विशाल, लाइक 45 मिनट्स कैसे निकल के पता नहीं चला, और ऑब्वियसली बात है जब हमने सोचा था कि हम ये सेशन करेंगे, हाँ और एंड देन यू वेरी लाइक सपोर्टिवली यू केम फॉरवर्ड एंड यस आकाश, लेट्स डू दिस। सो या पता था कि इट वुड बी अ फन फील्ड एंड एवरीवन वुड लव दिस। So I think we are done almost with this session, and as our friend said, like we want more live videos with guitar wala आई Vishal. थैंक यू सो So मच रूपा जी। एंड या दैट वाज रियली स्वीट ऑफ यू। So या definitely, Vishal, bhai, I'm taking your request on behalf of all these viewers that we would be needing you in some more sessions coming up डेफिनेटली in वुड बी future. कंप्लीटली माय प्लेजर। या And before we wind up, just couple of more lines because I just love your singing. So, koi apna favorite one? ओके ओके दिस वन। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. Wanna grow up once again. Yeah. Thank you so much, Vishal. Thank you everyone who joined in for today's session. Yeah. It was the fourth session of Khel Kala with Voice of Sky. And Vishal, love you, brother. And Thank you so much, Akash. Yeah. whatever challenge that you have in your family, may it sorted out very soon. And apart from that, I'm literally looking forward to your future projects within India and out of India as well. And I also look forward to be a part of it somewhere. So बहुत अच्छा लगेगा अगर हम साथ मिलकर भी कुछ कर सके. So looking forward to Yeah. that. Finger crossed. डेफिनेटली आकाश, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ऑनेस्टली मुझे बहुत 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 मजा आया। एंड जैसा तुमने कहा कि 45 मिनट कैसे बीत गए, मुझे आई मीन पता भी नहीं चला। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसे सेशन होते हैं। कुछ सेशन ऐसे होते हैं यार बस खत्म हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा था, मैं चाहता था कि कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू रहे। बट डेफिनेटली बहुत Exactly. जल्दी फिर एक सेशन करेंगे। एंड बिल्कुल. बहुत सही कर रहे हो तुम। एंड डेफिनेटली जो भी करेंगे आगे साथ में करेंगे। एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में we'll do something big together. So And thank you all the everyone best to from you too. India, Yeah. all the viewers. Vishal, thank you everyone for taking time out and be a part Yeah. of this initiative that is Khel Kala with Voice of Sky. Cake. Yeah. Yeah, that's Khel is for that. This is something I made because I am into cricket, you know. So Khel and then Kala is something that I Yeah. did. You Okay, should so yeah, sing and Akash, Akash should dance. Bye bye. Just one message. I in think you future, should sing and Akash should dance. Oh, we'll do that next time for sure. yeah, definitely we're gonna do that next time, and we'll do it in a bigger way. वो थोड़ा अच्छे से करेंगे और Sure. Good night, so everyone.
टेक केयर Yeah, एंड स्टे सेफ, स्टे इंडोर एज मच एज पॉसिबल. yeah. सिर्फ जरूरत के काम के लिए बाहर निकले, एंड अदरवाइज जितना आप बच के रह सको अभी जिस सिनेरियो में, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस एंड एवरीवन. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. बाय बाय. Thank you so much, Akash. Bye bye, Akash. Take care. Yeah.